Good morning, students. Today we are starting the next topic, cardinality of a set. Cardinality of set is the number of elements present in the set, number of unique elements. Total number of unique elements in the set is called the cardinality of the set. The cardinality of an infinite set is countably infinite. For example, suppose we have a set P having elements K, L, M, N. Its cardinality is 4 because it is having 4 unique elements. Then we have set A, which is set of all non-negative even integers. So it will have values 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 and so on. So its cardinality is countably infinite because A is an infinite set. Next topic is Venn diagram. A Venn diagram represents sets as a regions in the plane. वेन डायग्राम आर एक्चुअली पिक्चरली रिप्रेजेंटेशन. वेन डायग्राम के अंदर हम सेट्स को पिक्चर की फॉर्म में शो करते हैं. हम एक यूनिवर्सल सेट लेते हैं जिसको कि हम एक रेक्टेंगल से शो करते हैं और सेट को हम सर्कल की फॉर्म में शो करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, सपोज U is our universal set, then U is represented using this outside rectangle. A is a set under consideration of universal set. This is set A and it is represented using this circle. And A complement means which is not part of A. What is that? This area. This area outside your circle and inside your rectangle, this is called your A complement. Means anything which is in U but not in A. This is your complement. Complement of a given set A. Now we are showing some more examples of Venn diagram. Here is Venn diagram for A union B. If A union B are intersecting sets, then they will be represented like this. Means this is representing your set A. This is your set A and this area is your set B. And this is common to A and B. This area is common to A and B. This area in blue I am showing. This area is common to both the sets A and B. Now these are called intersecting sets because there is some common area in both of them. It means there are some common element which exist in both of them. So for finding A union B for intersecting sets, this part of A is considered, this part of B is considered, but this common area comes twice. So this is considered once. Means everything in A and B is considered under A union B. Now suppose A and B are your disjoint sets like this. Here A, here B. Then the whole area of A, this, and whole area of B will be there in A union B. Means for disjoint sets, everything of A and B will be there, and for your intersecting set as well, everything will be there which is in A and B, but common thing comes twice, so that will be once only. Alright, next we show the Venn diagram for A intersection B. In A intersection B, only this common area is part of your A intersection B, means which is common in both the sets. And if the sets are disjoint sets like this,
here is A, here is B, then there is nothing in common, so A intersection B will be phi in that case. Okay, next we have this is an example of A complement, B complement, C complement, and then their intersection. What will be there in the A complement? Everything except A, means A complement will have this whole area, all this in green, this will be part of A complement, everything except A. Then B complement, everything except B, everything except B will be in B complement, only B will not be there. Then C complement, everything except C will be there in C complement. Now what we have to calculate? We are supposed to this we were doing, okay, this was for B complement, it is okay. Everything except B is B complement. Similarly, everything except C is C complement. Now we are supposed to calculate this A complement intersection B complement intersection C complement. Then what will be there? Means common to all the three sets. जो तीनों नए सेट हमें obtain हुए A complement, B complement, C complement, उनमें common क्या है? Common क्या है? इन सेट्स को छोड़ के जो बाकी एरिया रह गया, जो ये हमें ब्लू में नजर आ रहा है, ये तीनों में कॉमन है, ए कॉम्प्लीमेंट, बी कॉम्प्लीमेंट और सी कॉम्प्लीमेंट. इसलिए ये जो एरिया रिप्रेजेंट कर रहा है, सेट्स को छोड़ के बाकी सारा एरिया रिप्रेजेंट कर रहा है इस चीज को. ठीक है. नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज मल्टी सेट्स. मल्टी सेट्स, multiset is an unordered collection of elements in which the multiplicity of an element may be 1 or more than 0 or 0. But it wants to say कि सेट ही है ये, अनऑर्डर्ड कलेक्शन होता है जैसे सेट होता है ऐसे ही, पर सेट में हमारे यूनिक एलिमेंट्स होते हैं. यहाँ पे एलिमेंट्स की मल्टीप्लिसिटी एग्जिस्ट करती है. मीन्स set may contain an element once, twice, maybe 0 times, maybe n number of times. मतलब एक एलिमेंट बहुत बार रिपीट हो सकता है. मल्टीप्लिसिटी का मतलब है द एलिमेंट इज रिपीटेड नंबर ऑफ टाइम्स इन द सेट. सो हर एक एलिमेंट की मल्टीप्लिसिटी 0 टाइम होने का मतलब है कि वो एग्जिस्ट ही नहीं करता. 1 टाइम का मतलब एक बार है, 2 टाइम्स का मतलब वो 2 बार आ रहा है, 3 टाइम्स मतलब 3 बार आ रहा है. यानी कि जब आपकी एलिमेंट्स की मल्टीप्लिसिटी वेरी करे तो आपका सेट मल्टी सेट है. हर एक एलिमेंट की अगर मल्टीप्लिसिटी 1 है तो हम कहते हैं कि सेट है. अगर हर एक एलिमेंट की मल्टीप्लिसिटी 1 या उससे ज्यादा है तो हम कहेंगे कि हमारा मल्टी सेट है. यहाँ एग्जाम्पल में देखिए, सेट ए है, इसके अंदर L 2 बार आया है, M 2 बार आया है और N 3 बार आया, N 4 बार आया है. इसी तरह बी सेट में A 3 बार आया, नहीं सॉरी, A 5 बार आया है और C 1 बार आया है. तो जैसे हम सेट्स पे ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, इसी तरीके से मल्टी सेट्स पे भी ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं. कैसे, कौन कौन से ऑपरेशन हैं मल्टी सेट्स पे? फर्स्ट ऑपरेशन है आपका यूनियन ऑफ अ मल्टी सेट. Union of a multiset. Union of two multisets A and B is a multiset such that multiplicity of an element is equal to the maximum of multiplicity of an element in A or B and is denoted by A union B. What we are trying to say here कि अगर हमारे पास एक सेट A है जिसमें कि एलिमेंट्स ये L 2 बार आया, यहाँ 2 बार आया, ये 4 बार आया,
इसी तरह बी में एल एक बार आया, 2 बार आया, एम 3 बार आया और एन एक बार आया। तो ए यूनियन बी में आपका क्या होगा कि ए और बी में एलिमेंट की मल्टीप्लिसिटी जहां ज्यादा है वो हम यूनियन में कंसीडर करेंगे। कैसे कि यहाँ पे एल एलिमेंट 2 बार आया और बी में एक बार आया, तो हम दो जिसमें मैक्सिमम है वो हमें कंसीडर करनी है। तो मैक्सिमम किस में है, ए में है, तो 2 बार हमारा नए सेट में ए यूनियन बी में एल 2 बार आएगा। इसी तरीके से आपका एम जो है इसमें 2 बार है और इसमें 3 बार है, तो 3 बार बी में है इसलिए यहाँ पे 3 बार आएगा। फिर एन यहाँ पे हमारा 4 बार है ए सेट में और बी में एन एक बार है तो 4 बार वाला आएगा। ठीक है, तो ए यूनियन बी में हम कैलकुलेट करेंगे तो नया सेट इस तरीके से होगा कि उसमें जो मल्टीप्लिसिटी है वो जिस सेट की मैक्सिमम होगी, एलिमेंट्स की मल्टीप्लिसिटी जिसमें मैक्सिमम होगी वो हम कंसीडर करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट ऑपरेशन है इंटरसेक्शन ऑफ मल्टीसेट्स। इंटरसेक्शन में मिनिमम मल्टीप्लिसिटी ऑफ ईच एलिमेंट अमंग ए एंड बी इज कंसीडर्ड। कैसे, यहाँ पे ए का देखिए एल 2 बार है, यहाँ एक बार है, तो हमारे आंसर में इंटरसेक्शन में एक बार एल आएगा। फिर एम यहाँ एक बार है, यहाँ 2 बार है, तो हमारा एक बार आएगा। फिर हमारा एन है, यहाँ एक बार है और नीचे वाले सेट में एक बार भी नहीं है, तो ये यानी कि नीचे वाले सेट में n की मल्टीप्लिसिटी हुई 0 और ऊपर वाले में हुई 1, इसलिए 0 वाला आएगा, यानी कि आएगा ही नहीं। नेक्स्ट p आपका यहाँ पे एक बार है, नीचे वाले में भी एक बार है तो एक बार आ गया। q यहाँ 2 बार है, नीचे वाले में एक बार है तो एक बार आएगा। r ऊपर वाले में एक बार है, नीचे वाले में 4 बार है तो एक बार आएगा। मीन्स हर एक एलिमेंट की ए मल्टीप्लिसिटी ए और बी में जब मिनिमम होगी दैट विल बी कंसिडर्ड इन द इंटरसेक्शन ऑफ मल्टीसेट्स। नेक्स्ट ऑपरेशन वी हैव डिफरेंस ऑफ मल्टीसेट्स। जैसे सेट्स का डिफरेंस निकालते हैं ना a माइनस बी, इसी तरीके से रिप्रेजेंटेशन तो सेम है, यानी कि जो सिंबल सेट के लिए यूज करते हैं वही यहाँ पे हम करेंगे यूज। जैसे हम सेट के लिए a माइनस बी लिखते हैं, डिफरेंस के लिए यहाँ भी a माइनस बी लिखेंगे। डिफरेंस में क्या होगा, मल्टीप्लिसिटी ऑफ एन एलिमेंट इक्वल टू द मल्टीप्लिसिटी ऑफ एलिमेंट इन a माइनस मल्टीप्लिसिटी ऑफ एलिमेंट इन b। a माइनस बी कर रहे हैं तो a में मल्टीप्लिसिटी क्या है और b में क्या है। a माइनस बी का डिफरेंस है तो a में जितनी है मल्टीप्लिसिटी माइनस b में जितनी है वो आएगी। अगर डिफरेंस पॉजिटिव है तो हमारा वही आ जाएगी मल्टीप्लिसिटी। अगर डिफरेंस 0 या नेगेटिव है तो हम एलिमेंट को कंसिडर ही नहीं करेंगे। यानी कि अगर हम ए के अंदर सपोज एक एलिमेंट है वो 4 बार आया और बी के अंदर वो 5 बार आ गया, तो 4 माइनस 5 कितना हुआ आपका, -1 हो गया। 4 माइनस 5 -1 हो गया, -1 हो गया, यानी कि उस एलिमेंट की मल्टीप्लिसिटी 0 कंसिडर करेंगे और वो हमारा इसके अंदर आएगा ही नहीं। ठीक है, और अगर 0 भी आई, मान लो 4 बार ही ए में है और 4 बार ही बी में है, तो डिफरेंस क्या हुआ, 4 माइनस 4 0, उस केस में भी एलिमेंट आएगा नहीं। तो यहाँ पे अब एग्जाम्पल से देखते हैं, एल यहाँ पे एक बार है, यहाँ पे एक बार है, एल वन माइनस 1 0, तो ये आएगा ही नहीं। फिर यहाँ पे एम है 3 बार, यहाँ पे एम है 4 बार, 3 माइनस 4 -1 नहीं आएगा। -1 जब नेगेटिव में आपकी मल्टीप्लिसिटी का डिफरेंस आ गया तो उसका मतलब वो एलिमेंट की मल्टीप्लिसिटी 0 कंसीडर करोगे और वो एलिमेंट नहीं आएगा। फिर n है यहाँ पे 3 बार, यहाँ पे एक बार, 3 माइनस 1 2, पॉजिटिव नंबर है इसलिए आपका 2 बार एलिमेंट आएगा। फिर p यहाँ पे 3 बार है और p इसमें 0 बार है, तो 3 माइनस 0 3, यानी कि p 3 टाइम्स जाएगा। देन इसमें और कोई एलिमेंट है नहीं, यहाँ पे r है, ऊपर वाले में r नहीं है, इसका मतलब उसकी मल्टीप्लिसिटी 0 और नीचे 3 बार है, इसका मतलब 3, 0 माइनस 3 इज -3, इसलिए -3 है, यानी कि आएगा ही नहीं। हमें पहले एलिमेंट में जो मल्टीप्लिसिटी है माइनस दूसरे सेट में मल्टीप्लिसिटी को घटाना है। पॉजिटिव है तो उतने ही नंबर टाइम्स ऑफ लिख दो और नेगेटिव या 0 है तो वो एलिमेंट नहीं आएगा। ऑलराइट, नेक्स्ट वी हैव
sum of multisets. Sum of multisets. Sum of two multisets is the multiset such that multiplicity of an element in the new set is equal to the sum of multiplicity of element in A and B. Means यहाँ पे सिंपल आपको सम करना है. This is the simplest one of all. एक A में देखो L एक बार है, B में 2 बार है, तो A प्लस B में 3 बार हो गया. M यहाँ पे एक बार है, यहाँ पे भी एक बार है, तो 2 बार हो गया. फिर आपका N यहाँ एक बार है, यहाँ 2 बार है, तो 3 बार हो गया. N इसने 4 बार क्यों दे रखा? अच्छा 4 बार, ऊपर एक बार है, नीचे 3 बार है, तो 4 बार हो गया. फिर P यहाँ एक बार है, यहाँ भी एक बार है, तो 2 बार हो गया. R यहाँ एक बार है, यहाँ 2 बार है, तो टोटल 3 बार हो गया. ठीक है. सम द सिंपलेस्ट ऑफ ऑल कि आप सिंपली मल्टीप्लिसिटी ऐड कर दो और उतने नंबर ऑफ टाइम दिखा दो. नेक्स्ट वी हैव कार्डिनलिटी ऑफ अ मल्टीसेट. The cardinality of a multiset is the number of distinct element in multiset without considering the multiplicity of element. मल्टीसेट और सिंपल सेट दोनों की कार्डिनलिटी सेम रहेगी, क्योंकि यहाँ भी यूनिक एलिमेंट काउंट करने हैं हमें. ए के अंदर एल है, चाहे 2 बार है, लेकिन एक बार ही कंसीडर करेंगे. ये भी एक बार कंसीडर करेंगे, ये भी एक बार कंसीडर करेंगे, और पी भी एक बार कंसीडर करेंगे, और क्यू भी एक बार कंसीडर करेंगे. तो इस तरीके से एक एल एम एन पी क्यू 5 एलिमेंट्स हैं यूनिक. हालांकि बहुत सारे हो ऐसे तो हैं, लेकिन रिपीटेशन है, इसलिए कार्डिनलिटी आपकी 5 होगी. So cardinality of a multiset is the number of distinct elements in multiset without considering the multiplicity of an element. Multiplicity को consider नहीं करते, उसको एक बार ही मानते हैं उसके occurrence को, और इस तरीके से distinctly जितने exist करते हैं वो इसके अंदर हम लेते हैं. ठीक है. नेक्स्ट टॉपिक है आपका ऑर्डर्ड पेयर. ऑर्डर्ड पेयर की यूटिलिटी हमारी कहाँ होती है? जब हम सेट्स को मल्टीप्लाई करते हैं, उनका कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालते हैं. ऑर्डर्ड पेयर क्या है? एन ऑर्डर्ड पेयर कंसिस्ट ऑफ 2 एलिमेंट्स सच दैट वन इज डेजिग्नेटेड एज फर्स्ट मेंबर एंड अदर एज सेकंड मेंबर. If P is the first member and Q is the second member, then ordered pair is written as PQ. ये देखो, सेट को जब हम डालते हैं तो हम मिडिल ब्रेसेस में डालते हैं, लेकिन ऑर्डर्ड पेयर को स्मॉल ब्रेसेस के अंदर लिखते हैं. अगर A एक सेट है और उसके एलिमेंट्स हैं 1 2, ये सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है मिडिल ब्रेसेस, तो पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर ऑफ A क्रॉस प्रोडक्ट A और A का A के साथ ही कार्टेशियन प्रोडक्ट करें तो ये ऑर्डर्ड पेयर बनेंगे 1 1 1 2 2 1 2 2. ठीक है. अब हम देखते हैं कि कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या है. कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ 2 सेट्स P and Q in that order. It is very important in that order कि P and Q का प्रोडक्ट कर रहे हो, P पहले और Q बाद में, is the set of all ordered pairs whose first member belong to P and second member belong to Q and it is denoted by P cross product Q. कार्टेशियन प्रोडक्ट को डिनोट करते हैं इस प्रोडक्ट सिंबल से, और P क्रॉस प्रोडक्ट Q इस ऑर्डर में अगर माने तो इसमें जो ये एक सेट होगा जिसके जो एलिमेंट होंगे वो ऑर्डर्ड पेयर होगा, और ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट एलिमेंट विल बिलोंग टू P and second element will belong to Q set. Second element will belong to Q set. यानी कि P क्रॉस प्रोडक्ट में जो मेंबर्स आएंगे वो एक ऑर्डर पेयर होगा और उसका पहला एलिमेंट P से बिलोंग करेगा और दूसरा एलिमेंट Q सेट से बिलोंग करेगा. एग्जाम्पल से थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा. अभी करते हैं. देखो P है हमारा सेट जिसके अंदर एलिमेंट है A B C. Q के अंदर एलिमेंट्स है K L M N. अब हमें इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट करना है P क्रॉस प्रोडक्ट Q. तो क्या होगा? पहला एलिमेंट A उठाया, उसके साथ Q के हर एक एलिमेंट का ऑर्डर्ड पेयर बनाना है. A K A L A M A N, और ये छोटी ब्रेसेस के अंदर
इस तरीके से होगा और कोमा से सेपरेट करते जाएंगे। फिर बी एलिमेंट लेना है, उसका हर एक किसी के साथ एक सेट बनाना है। बी के एल बी एम, एल बी नहीं बी एम बी एन, क्योंकि बी जो है ना वो पहले आना चाहिए, पी सेट का एलिमेंट पहले आएगा। देखो बी के बी एल बी एम बी एन, और क्यू सेट का एलिमेंट बाद में आएगा। सिमिलरली अब सी बच गया, सी के साथ सी के सी एल सी एम सी एन। तो अगर किसी सेट में 3 एलिमेंट्स हैं, दूसरे सेट में 4 एलिमेंट है और उनका क्रॉस प्रोडक्ट करना है तो उसमें जो आपके एलिमेंट्स होंगे 3 इंटू 4 12 होंगे, और क्रॉस प्रोडक्ट के जो नया सेट आएगा उसके जो एलिमेंट्स होंगे दे विल बी ऑर्डर्ड पेयर consisting of the first element from the first set and second element from the second set. I think ये example से clear हो गया होगा. Means if a set contain m elements and other set contain n element, and if you want to find the cross product of the set, then we will obtain a new set consisting of ordered pair, and the number of ordered pair will be m into n. Means number of element in the new set will be m into n. Right? Then there is another example of cross product. Here is we have set A, set R, sorry, having element 1 2 3, and then we are having element set S having element 4 5 6. So cross product will have 1 4 1 5 1 6 2 4 2 5 2 6 3 4 3 5 3 6. 3 elements in R, 3 elements in S. So total number of elements will be 3 into 3, 9. 9 ordered pair will be there. Okay. Let me see if any other topic left in this. Okay. Then we have some problem. We'll do them after some time. So thank you. Okay, now if you have any problem, you can share with me now. हाँ जी बेटा, कुछ बच्चों का इशू है कि आवाज